Hello students, as you know that we are completing chapter number 9, that is sequence and series. Okay students, in the last part we have started AP, okay, arithmetic progression, and I told you that arithmetic is AP is a sequence in which the difference of a term and the previous term is a constant. In the AP, the first term is denoted by small a and common difference is denoted by small d. And after that, I told you the formula of nth term of the AP, sum of first n terms of an AP, and how to calculate arithmetic mean between two numbers. If you want to calculate a single arithmetic mean between two numbers, then the formula will be a plus b divided by 2. And if you have to calculate n number of arithmetic mean between two numbers, so one more formula I told you, that was in that formula you have to calculate first d with the formula b minus a divided by n plus 1, and after that with the help of second, third, fourth term property you can find the as many arithmetic mean between any two numbers. Okay, so that much thing we have discussed, student. So today we will solve few important questions based upon AP. Student, in your exercise I have seen some questions. They all questions are same as whatever question were given in the 10th class syllabus. Okay, so that much question you can do. I will solve only important question which you can understand. Okay, क्योंकि इस जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे इजी हैं, दो तीन को छोड़ के अलावा. ठीक है, दो तीन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सारे क्वेश्चन पहले के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही हैं. केवल दो तीन क्वेश्चन ही कुछ नए टाइप के हैं. दैट आई विल डिस्कस टुडे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन क्वेश्चन. दैट इज, व्हाट इज द क्वेश्चन? The sums of n terms of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. ठीक है, find the ratios of their 18th terms. ठीक है, this is the question. I think most of you have solved this type of question in 10th class only, but फिर भी I will tell you how to solve this type of question. So students, see the question. The sum of n terms of an 2 AP are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Then you have to find the ratio of their 18th term. Okay, so see student, we will assume 2 AP. Okay, suppose that here I am considering AP1 and here I am considering AP2 because there are 2 AP. So this is AP1 and AP2. Its first term is A1 and its first term is A2. ठीक है, similarly its common difference is D1 and its common difference is D2. ठीक है, okay, there are 2 APs. In first AP, first term is A1, second and common difference is D1. In the second AP, first term is A2 and the common difference is D2. And we have to calculate the sum of their n terms. Okay, so suppose the sum of their n terms for this AP will be equal to n by 2 in bracket 2A1 plus n minus 1 D1. ठीक है, with the formula of sum of first n terms. Okay, similarly for this AP I can write n by 2 in bracket 2A2 plus n minus 1 D2. ठीक है, so sum of n terms of 2 AP are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. तो मतलब कि दोनों के सम का
सॉरी दोनों के n टर्म्स का सम का रेशियो गिवन है, ठीक है। दो अलग अलग एपी है, पहले मैंने पहले एपी के n टर्म्स का सम लिख लिया दैट इज S1 एंड इधर मैंने दूसरी एपी के n टर्म्स का सम लिख दिया दैट इज S2। अब इन्हीं दोनों का रेशियो गिवन है, ठीक है। सो S1 by S2 इज गिवन, ठीक है। S1 by S2 इज गिवन। S1 by S2 कितना है 5n plus 4 डिवाइड बाई 9n plus 6, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर S1 S2 की वैल्यू पुट कर दो आप। सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ S1 and S2 you will get n by 2 in bracket 2a1 plus n minus 1 d1 and downside n by 2 in bracket 2a2 plus n minus 1 d2, ठीक है, which is equal to 5n plus 4 divided by 9n plus 6. So this is given. So you can simplify it now student, you can simplify it. So how will you simplify it? See, n by 2 will be cancelled. So what will be left in the numerator? 2a1 plus n minus 1 d1, ठीक है, और नीचे 2a2 plus n minus 1 d2 which is equal to 5n plus 4 divided by 9n plus 6। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया इससे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के 18th टर्म का रेशियो निकालना है। तो एक बात बताओ स्टूडेंट, दोनों के 18th टर्म को कैसे लिखेंगे? अगर मान लो ये रफ साइड, ये लिखना नहीं है, मुझे पहले एपी का 18th टर्म लिखना है। तो पहले एपी का 18th टर्म हो जाएगा फॉर फर्स्ट एपी a1 plus 17 d1 और दूसरे एपी का जो होगा 18th टर्म वो हो जाएगा a2 plus 17 d2, ठीक है। मतलब कि मुझे इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब कि आई हैव टू कैलकुलेट सपोज t18 of 1 t18 of 2, मतलब कि 18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड 18 टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो फर्स्ट एपी को मैंने लिखा a1 plus 17 d1 और इसको लिखा मैंने a2 plus 17 d2। अब इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब मुझे ये निकालना है a1 plus 17 d1 अपॉन a2 plus 17 d2। मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जिस भी टर्म का निकालना होता है रेशियो स्टूडेंट, पहले आप सॉल्व कर लो, ठीक है। फर्स्ट यू सॉल्व वट एवर इज गिवन। गिवन था कि दोनों के n टर्म्स का सम का रेशियो गिवन था दैट इज 5n plus 4 अपॉन 9n plus 6। अब इनकी मदद से मुझे दोनों के 18th टर्म का रेशियो निकालना है। तो आपको करना क्या है ना, जिस भी टर्म का रेशियो निकालना है उसका ट्वाइस करो। किस टर्म का रेशियो निकालना है? 18th टर्म का। तो 18 का ट्वाइस कितना हो गया? 36, और उसमें से एक माइनस कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस भी टर्म का रेशियो निकालना है, मान लो 15th टर्म का रेशियो निकालना है, 16th टर्म का रेशियो निकालना है, 18th टर्म का रेशियो निकालना है एंड सो ऑन। तो आपको करना क्या है, उसका ट्वाइस करना है। जिस भी टर्म का रेशियो निकालना है, 18th टर्म का रेशियो निकालना था, तो 18 का ट्वाइस कितना हुआ? 18 का ट्वाइस होगा 36 और उससे एक माइनस कर देना है, यानी कि 35। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं n इक्वल टू 35 पुट कर दूं, n की वैल्यू कैसे पता चला? जो भी टर्म निकालना है, जो भी टर्म निकालना है उसका आप क्या करो, ट्वाइस और -1। तो कितना हुआ? 35। ये पुट कर दो, ये क्या कर दो, पुट किसमें? इसमें, ठीक है। जो भी आपको रिजल्ट मिला था सॉल्व करने के बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म से, उसमें आप n की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू पुट कर दूंगा स्टूडेंट, तो आएगा 2a1 प्लस n है 35 -1 d1 और नीचे भी आएगा 2a2 प्लस 35 -1 d2 इज इक्वल टू, यहां भी n की वैल्यू पुट करोगे क्योंकि दोनों साइड n है, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 35 प्लस 4 एंड 9 इंटू 35 प्लस 6। अच्छा, अब देखो ये जरा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a1 प्लस 35 -1 विल बी 34 d1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a2 प्लस 34 d2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 35 विल बी 175 एंड 175 प्लस 4 179 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 9।
35 इंटू 9 स्टूडेंट 315 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना आता है। हाँ 315 आएगा और 315 प्लस 6 321। ठीक है, तो ये आ गया 179/321। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस पार्ट को। आई होप दिस थिंग यू हैव नोटेड डाउन और यू हैव अंडरस्टूड। अब देखो यहां से ऊपर और नीचे दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लूं, so in the bracket I will get a1 plus 17d1 and in the denominator same 2 I will take common, so I will get a2 plus 17d2 and here will be 179/321। ठीक है, 2 will be cancelled, so it will left a1 plus 17d1 upon a2 plus 17d2 which is equal to 179/321। तो ये जो आया आपका ये चीज a1 plus 17d1 वो पहले AP के 18 टर्म है और a2 plus 17d2 वो दूसरे AP का 18 टर्म है और उन्हीं दोनों का रेशियो कितना आ गया 179/321। ठीक है, तो दिस विल बी द योर आंसर। इट मींस द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म विल बी 179/321। सो प्लीज नोट डाउन इट। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंप्लीफाई ये नहीं होगा, सो आंसर विल बी 179/321। ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव टू डू। बस आपको क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दिया है कि 2 AP है, दोनों के n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगाओ, वहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा इस फॉर्म का। अब जिस टर्म का भी आपको रेशियो निकालना है उसका आप ट्वाइस करो और -1 कर दो, वही वैल्यू आपकी n की पुट करनी है इस स्टेटमेंट में। तो मैंने क्या किया है, पुट n इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 18। ट्वाइस ऑफ 18 क्यों किया है, क्योंकि मुझे 18 टर्म का ये रेशियो निकालना था। ठीक है, तो मैंने इसका ट्वाइस किया और उसमें से एक माइनस कर दिया, तो मुझे n की वैल्यू मिली। यही n की वैल्यू आप इस स्टेटमेंट में पुट कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा 2a1 प्लस 34d1, नीचे आ जाएगा 2a2 प्लस 34d2, दोनों में से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा a1 प्लस 17d1 और नीचे बचेगा a2 प्लस 17d2 और वो दोनों क्या होंगे, दोनों AP की 18th टर्म होंगे और उन्हीं का रेशियो मिल जाएगा आपको। सो द रेशियो विल बी 179/321। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लास 10th में भी था। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन इट। Now student, next very important question of AP, that is if a to power n plus b to power n divided by a to power n minus 1 plus b to power n minus 1 is the AM between a plus b, a and b sorry, is the AM between a and b, then find the value of n। मतलब कि this is the AM means this is the arithmetic mean between a and b, so we have to find the value of n। So see how we will solve। We know now student, if there are 2 number and we have to find the arithmetic mean between them, so what is the formula, a plus b by 2। so it means that AM will be equal to a plus b divided by 2। जब आपको एक AM निकालना होता है तो 2 नंबर के बीच में तो फॉर्मूला क्या होता है, a plus b by 2 and AM is given in the question। AM is this is the arithmetic mean between a and b, so in place of AM we can put this value, so we will write a to power n plus b to power n divided by a to power n minus 1 plus b to power n minus 1 is equal to a plus b divided by 2। ठीक है, ये होगा। Now what you do क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका मल्टीप्लाई इधर, so you will get 2an plus twice of bn in the left hand side and in the right hand side you will get a plus b in the bracket a to power n minus 1 and b to power n minus 1। ठीक है, now multiply it, so you will get this side only 2 to power an and 2 into b to power bn। ठीक है, इधर तो यही होगा, इधर क्या हो जाएगा a इंटू ए एन माइनस 1। जब a का मल्टीप्लाई ए एन माइनस 1 में आएगा तो ये a n ही होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो a टू पावर n ही आएगा। खुद सोचो,
ए टू पावर 1 इंटू ए टू पावर एन माइनस वन। जब दो बेस सेम हो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस एन माइनस वन, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ए टू पावर एन ही बचेगा। ठीक है, देन b इंटू ए टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, b का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो b इंटू ए टू पावर एन माइनस वन। उसके बाद a का मल्टीप्लाई जब b में करोगे तो a इंटू बी टू पावर एन माइनस वन, और जब b का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आएगा b टू पावर n। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। जस्ट मैंने सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो a का मल्टीप्लाई ए टू पावर एन माइनस वन में हुआ तो a n, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो b इंटू ए टू पावर एन माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो a इंटू बी टू पावर एन माइनस वन, और b का मल्टीप्लाई जब इसमें हुआ तो b टू पावर n। अब देखो इधर 2 इंटू ए टू पावर n है और इधर a टू पावर n है, तो जब आप इसको इधर ले जाओगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 2 ए टू पावर n है, मतलब कि इसको ऐसे समझो, ए टू पावर n को मान लो x मान लो, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे x, तो ये x इधर जाएगा तो यहाँ केवल x बचेगा। इसी तरह इधर क्या है 2 इंटू ए टू पावर n, और यहाँ पर केवल एक ही ए टू पावर n है, तो इसको जब आप इधर ले जाओगे तो इस साइड क्या बचेगा ए टू पावर n ओनली। सिमिलरली जब b टू पावर n इधर ले जाओगे तो इधर क्या बचेगा b टू पावर n ओनली। ठीक है, और इस साइड क्या बचेगा b इंटू ए टू पावर n माइनस वन और प्लस a इंटू बी टू पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है स्टूडेंट, इसके बाद ही असली चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, इसके बाद ही असली कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अब करना क्या है आपको, व्हाट यू हैव टू डू, जो a टू पावर n माइनस वन है, ये वाला जो है जिसमें a का पावर n माइनस वन, उसको इस साइड ले जाओ और b टू पावर n को उधर ले जाओ। ठीक है, समझो कि ये फैक्टराइज करना है हम लोगों को, तो मैं क्या कर रहा हूं a टू पावर n को इधर रहने दे रहा हूं और इसको इस साइड ले जा रहा हूं। सो दिस साइड विल बी a टू पावर n माइनस b इंटू ए टू पावर n माइनस वन। ठीक है, और इसको मैं उधर ले जा रहा हूं, तो इधर पहले से ही था a इंटू बी टू पावर n माइनस वन और माइनस b टू पावर n। ठीक है, अच्छा अब देखो इतना तो कर लिया हम लोगों ने। अब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा, तो b तो कॉमन मिलेगा नहीं, दोनों में a टू पावर n और a टू पावर n माइनस वन। आप खुद सोचो a टू पावर n बड़ा है या a टू पावर n माइनस वन, तो ऑब्वियसली a टू पावर n माइनस वन, सॉरी a टू पावर n और a टू पावर n माइनस वन में बड़ा कौन सा पावर है a टू पावर n, तो जो छोटा पावर होगा वही कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर आप a टू पावर n माइनस वन कॉमन लेते हो तो बचेगा क्या, यहां बच जाएगा a और यहां बच जाएगा b। खुद सोचो अगर a n में से a टू पावर n माइनस वन हटा लिया जाए तो क्या बचेगा a ओनली, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a टू पावर n ही आएगा। ओके, इसी की तरह अगर आप इसमें से a टू पावर n माइनस वन कॉमन लोगे तो b बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में b का पावर है, तो जो b का पावर छोटा होगा वो कॉमन ले लोगे, सो हियर विल बी b टू पावर n माइनस वन। तो इस साइड में क्या हो गया स्टूडेंट, इस साइड में क्या हो गया a माइनस बी ओनली। ठीक है, यही आएगा। तो अब देखो दोनों साइड a माइनस बी कॉमन है ना, और वो इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या a टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b टू पावर n माइनस वन। ठीक है, अब क्या करो आप b टू पावर n माइनस वन को इस साइड डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा a टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाई b टू पावर n माइनस वन विच इज इक्वल टू वन। ठीक है, ओके, अब यहां पे एक्सपोनेंट और पावर का रूल लगाएंगे। अगर a टू पावर n डिवाइड बाई b टू पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a अपॉन b होल पावर n। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग दैट फॉर्मूला वी कैन राइट a अपॉन b होल पावर n माइनस वन, और इधर क्या रहेगा 1। अच्छा अब खुद देखो, एक्सपोनेंट इन पावर में जब n की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, दोनों साइड का बेस सेम करते थे। तो क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूं, इसको तो मैं लिखा a अपॉन बी n माइनस वन, और 1 को मैंने लिख दिया a अपॉन बी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमने इसलिए किया ताकि दोनों साइड का बेस क्या हो जाए सेम। अब देखो दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा आपस में, सो बाय कंपेयरिंग देयर पावर्स वी कैन राइट n माइनस वन इक्वल टू 0।
So n will be equal to 1. So the answer of this question will be n equal to 1. This is very important question and usually comes in the exams. So please note down it. Now students, another very important question of AP is that the interior angles of a polygon are in AP, okay? The interior angles of a polygon are in AP. The smallest angle is 120 degree and the common difference is 5 degree, okay? Find the number of sides of the polygon, okay? So students, this is the question of the sum of n terms of an AP, okay? So how will you tackle it? So first see what are the information are given. Smallest angle is given, means first angle is given, means the first term of an AP is given. So we will assume it that A is equal to 120 degree, okay? A is equal to 120 degree. Common difference is 5, so D will be equal to 5, okay? And in the question it is given that all the interior angles of a polygon are in AP, means the angles of a polygon are in AP, means they will form an AP, okay? And the smallest angle is 120 and the common difference is 5. So we have to find the number of sides of the polygon, मतलब कि polygon में कितने sides होंगे, that we have to find out, ठीक है? So first you should know student, the sum of all interior angles of a polygon is calculated by one formula. We know that sum of all interior angles of polygon is equal to n minus 2 into 180 degree. This is the formula of sum of all interior angles of a polygon. This is given in your class 8th book. You can see it if you don't know. किसी पॉलीगन में उनके सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, n minus 2 into 180, ठीक है? हमें n क्या होती है यहाँ पर, n is the number of side which we don't know, which we have to calculate. तो हम लोग यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज द सम? बिकॉज वी नो ना द एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर फॉर्मिंग एन एपी, सो इट मीन्स दैट whatever interior angles will be there, they will be in AP. So we can find their sum with the help of the formula of AP. अगर उनके सारे एंगल इंटीरियर एंगल AP फॉर्म कर रहे हैं तो उन सारे एंगल का सम हम लोग AP के साथ इक्वल टू n by 2 in bracket 2a plus n minus 1d. This we know, ठीक है? और what is Sn? Sn is the sum of all interior angles of a polygon. So in place of Sn we can put n minus 2 into 180, ठीक है? We can put n minus 2 into 180, and in place of n we don't know. In place of a we can put 120, and in place of d we can put 5. Now multiply this 2 in this side, so we will get n minus 2 into 180 into 2, ठीक है? And this side n in bracket 240 plus, when this 5 will multiply to n, 5n minus 5. Now when you will multiply it, you will get 360, and when you will multiply this 360 to this bracket, you will get 360n minus 720. 360 into n minus 720, ठीक है? और इस साइड क्या मिलेगा आपको, n into in bracket 240 minus 5 will be 235 plus 5n, ठीक है? अगर आप चाहो तो इसमें से 5 कॉमन भी ले सकते हैं स्टूडेंट. यू कैन टेक 5 एज अ कॉमन. 5 कॉमन ले लोगे तो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा ये, तो मैं 5 कॉमन ले ही लेता हूं, ठीक है? सो 360n minus 720 is equal to 5n, and in the bracket 47 plus n, ठीक है? अब 5 इस
इस साइड की कुछ चीजों को कैंसिल कर देगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो मैंने ये 5 इसमें से कैंसिल करोगे तो इधर क्या बचेगा 72n माइनस 144, ठीक है। 72n माइनस 144 यही बचेगा स्टूडेंट यहां पर, ठीक है। और इस साइड बचेगा n इन ब्रैकेट 47 प्लस n, यही बचेगा 47 प्लस n, क्योंकि यहां का 5 तो इसको कैंसिल कर दिया ना। अरे यहां से 5 कॉमन लेते तो क्या मिलता 72n माइनस 144, उसके बाद 5 कैंसिल हो जाता, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 72n माइनस 144 इज इक्वल टू 47n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप सारी चीजें उधर लेते जाओ तो इस साइड बचेगा 0, इस साइड होगा n स्क्वायर प्लस 47n, और ये दोनों जब इधर जाएगा तो माइनस 72n प्लस 144। तो जब इसको सही से लिखोगे आप तो यू विल गेट n स्क्वायर 47 एंड 72 माइनस 25n एंड प्लस 144 इक्वल टू 0। ये आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने के बाद। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आइदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और बाय श्रीधराचार्य मेथड। So I am going to solve it by using factorization method. So it can split in 6 and 9. So n square minus 16n minus 9n plus 144 equal to 0. So from here I can get n from in these two bracket n can be common. So n into n minus 16 minus 9 n minus 16 equal to 0. So we will get n minus 16 and n minus 9 equal to 0. So either n will be equal to 6 or n will be equal to 9. So two values of n we will get, ठीक है, two values of n we will get. तो एक बात बताओ स्टूडेंट, या तो हमारा नंबर ऑफ साइड 16 होगी या नंबर ऑफ साइड 9 होगी, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। क्यों नहीं दोनों होगा, क्योंकि एक पॉलीगन है ना, तो पॉलीगन की एक साइड फिक्स होगी ना, या तो 16 होगी या तो 9 ही होगी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज दिया था कि स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, ठीक है, यानी कि पहला एंगल 120 है और बाकी सारे एंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 का है, ठीक है। अच्छा तो मान लो कि मैंने n इक्वल टू 16 ले गया, फॉर एग्जांपल कि मेरा n इक्वल टू 16 हुआ, तो यानी कि उस पॉलीगन में जितनी साइड, देखो आपको पता है एक पॉलीगन में जितनी साइड होती है उतने ही उसमें एंगल्स होते हैं। तो अगर 16 साइड है तो 16 एंगल्स भी होंगे, और जो एंगल्स है वो एपी में है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मतलब कि जो 16वां वाला एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो अगर मैं यहां से T16 निकाल लू, T16, तो T16 कैन बी रिटन एज a प्लस 15d। T16 मतलब कि 16वां एंगल कौन सा होगा, तो अगर मैं T16 निकालता हूं तो AP में है तो a प्लस 15d, और a की वैल्यू 120 है, 15 तो वी डोंट नो, एंड ये हो गया 5। इन दोनों को जब ऐड करोगे स्टूडेंट तो यू विल गेट 195 डिग्री, मतलब कि जो 16वां एंगल होगा वो कितना आएगा 195, ठीक है। 16वां जो एंगल आया मतलब कि जो हमारा लास्ट वाला एंगल है, अगर मैं मान रहा हूं कि पॉलिनोमियल में 16 साइड्स है तो लास्ट वाला एंगल 195 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, आपने पढ़ा है किसी भी पॉलीगन में, मैं पॉलिनोमियल बोला हूं तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, अगर किसी भी पॉलीगन में आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल एंड ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, आपने ये पढ़ा होगा, दिस थिंग यू हैव स्टडीड इन I प्लस ई इज इक्वल टू 180, मतलब कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180। किसी पॉलीगन में एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, मतलब कि किसी भी पॉलीगन में एक इंटीरियर एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल होगा उन दोनों का सम 180 होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो जो हमारा 16 वाला एंगल है, मतलब कि जो 16वां एंगल है वो कितना आ गया 195, तो क्या एक्सटीरियर एंगल नेगेटिव में होगा? नहीं, एंगल नेगेटिव में नहीं होगा, पहली बात। तो इससे यह पता चला कि हमारा इंटीरियर एंगल कभी भी, एक चीज याद रखो, इंटीरियर एंगल कभी भी हमेशा 180 से छोटा ही होगा, 180 से छोटा ही होगा, 180 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये कंडीशन याद रखना है I प्लस ई इज इक्वल टू 180। तो अगर आपके पास दो n की वैल्यू आ जाए
तो आप n से ये तो डिसाइड कर लोगे ना कितने एंगल होंगे, तो आप पहले चेक कर लो कि लास्ट वाला एंगल कौन सा होगा। अगर लास्ट वाला एंगल 180 से ज्यादा है तो इसका मतलब n इक्वल टू 60 विल नॉट बी आवर आंसर। सो आवर आंसर विल बी n इक्वल टू 9। अब n इक्वल टू 9 अगर होगा इसका मतलब उस पॉलीगन में 9 साइड है, तो अगर 9 साइड है तो 9वां एंगल क्या होगा, a प्लस 8d। a प्लस 8d तो होगा, तो a हमारा 120 है और d हमारा 5 है, तो 120 प्लस 8 इंटू 5 यानी कि 160। यस 160 हो सकता है क्योंकि वो 180 से कम है। तो इंटीरियर एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा, 180 से छोटा ही होगा। यहाँ पे इंटीरियर एंगल हमने जब 16 मान लो मैं एक पॉलीगन ड्रॉ करता जिसमें 16 साइड होती, तो 16 साइड होती तो 16 एंगल भी होते, और उन 16 एंगल में 120 सबसे छोटा था, इसका मतलब 16वां सबसे बड़ा होगा। और 16वां को जब निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, AP का यूज करके a प्लस 15d, और जब निकाला तो 195 आया, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। सो n इक्वल टू 16 कैन नॉट बी आवर आंसर। सो इट मीन्स दैट n इक्वल टू 9 विल बी आवर आंसर। ठीक है, अगर आपको 2 n दिखे पॉलीगन के क्वेश्चन में तो उन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। और चेक कैसे करोगे आप, दोनों में से ही कोई एक पिक करो और उसका लास्ट वाला एंगल निकाल लो। अगर लास्ट वाला एंगल 180 से कम आ रहा है तो वही वाली साइड होगी, और अगर लास्ट वाला एंगल 180 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कि n इक्वल टू जो हमने लिया है वो सही नहीं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एपी के। अब स्टूडेंट देखो 9.1 तो हो ही गया होगा आपको आई थिंक। 9.2 बहुत इजी है, एपी पर ही है। जितने भी क्वेश्चन 9.2 में दिए हुए हैं, चाहे वो एपी के nth टर्म से रिलेटेड, चाहे एपी के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड, चाहे एपी के सम से रिलेटेड, वो सारे के सारे बहुत इजी है। सो दैट, और जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने बता दिया है। सो इट मीन्स दैट यू कैन कंप्लीट exercise 9.1 as well as 9.2. So in the next part of the video, I will start a new series or new progression, नई सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको जीपी भी बोलते हैं। तो अगली क्लास में हम जीपी स्टार्ट करेंगे, दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ओके, सो आई होप whatever things I taught you in AP that is clear to you. So remaining thing of this chapter we will discuss in the next part of the video. So till then students, have a nice day. Take care. Thank you.